Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do beta matrices and determinants. Now in this chapter we have done quite a lot of things. तो आज जो चीज हम करने वाले हैं वो होगी बेटा कि कब कोई मैट्रिक्स होता है सिंगुलर या फिर नॉन सिंगुलर एंड हाउ डू वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑलराइट, तो ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ऑलराइट, अब आप देखो डेफिनेशन कि जब हम बात कर रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा आपको पता है डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के ही अलाउड होते हैं. डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू विच वी एसोसिएट विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हम बात करते हैं तो उसका स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि वो सिंगुलर तब होगा जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0. और अगर नॉन सिंगुलर है तो वो तब होगा व्हेन इट्स डिटर्मिनेंट हैज वैल्यू नॉन जीरो. Let me take an example over here. Suppose I have a matrix A which is given by, suppose it is a 2 cross 2 matrix whose entries are 3, -2 and then we have -6 and 1. Let us calculate the value of its determinant. It's a 2 cross 2 matrix. तो इसके determinant की value अगर हम निकालेंगे तो it will be this into this minus this into this. तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, it is -6 and minus +6 which is equal to 0. तो क्योंकि यहाँ पे बेटा 0 आ गया डिटर्मिनेंट, इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज singular matrix. Is it all right? So singular matrix is that in which determinant of A will be 0. Let me take another example. Suppose we have a matrix A given by, suppose 2, -5, 4 and 8. Is it all right? Now let us calculate the value of its determinant. Again it is a 2 cross 2 matrix. So determinant of A will be equal to 8 2s are 16 and then minus plus 4 5s are 20. So this is coming out to be 36 which is non-zero. अब ये वो मैट्रिक्स है whose determinant is non-zero. That means this matrix will be called as non-singular matrix बेटा. तो ये मैट्रिक्स हमारा होगा non-singular matrix. Is it okay? So it is this. So that is what we mean when we say singular matrix and non-singular matrix. Is it all right? इसकी देखो जो use है that we will see when we come to solving of linear equations by using matrices. All right? So और जब भी हम inverse की बात करेंगे, even then we will talk about the importance of a matrix being non-singular. For the time being, let us move on to the next definition, which would be adjoint of a square matrix. अब देखो क्या होता है adjoint एक square matrix का. Let's see the definition. If we have a matrix A, Aij of order say n, that means it is a square matrix of order n, so it has n rows and n columns. Then determinant of A is same of A is the same order n formed by corresponding elements of A. Determinant of A तो हमें निकालना आता ही है बेटा इसका. ऑर्डर 3 का हम कैसे निकालते हैं. नाउ लेट अस सी द एडजॉइंट. तो अगर बेटा कैपिटल ए आई जे, दीज आर कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दिस, जो आपने कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकाला है एलिमेंट्स का, इफ वी टेक इट्स ट्रांसपोज, देन द corresponding matrix obtained is called as adjoint or adjugated matrix of A. Is it all right? And it is denoted by either A, D, J dot लगा के A लिखते हैं, और we simply write adjoint of A. Is it all right? Now suppose we take a matrix of order 3 cross 3. In general, A can be any square matrix of order n. If you take a matrix of order 3 cross 3, इस टाइप का अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं, A equal to Aij, order is 3 cross 3. So you know that Aij means element in the ith row and jth column. So we write the elements in this way, right? A11, A12, A13 and so on. So determinant of A will be written as this.
और एडजॉइंट ऑफ ए देखो क्या मिलेगा, अगर A11 को फैक्टर है स्मॉल a11 का, इसी तरह से A12 इज को फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट A12, कैपिटल A13 इज को फैक्टर ऑफ A13 एंड सो ऑन। हर एक का को फैक्टर ले लो और फिर ले लो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में यू नो दैट वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, तो ये जो फर्स्ट रो थी A11 A12 A13, दिस इज बिकमिंग फर्स्ट कॉलम। देन सेकेंड रो जो कि हमारे को फैक्टर्स थे इन एलिमेंट्स के बेटा, उनको हमने बना दिया सेकेंड कॉलम, और ये जो थर्ड रो थी जिसमें हमने लिए थे को फैक्टर्स थर्ड रो के, उनको हमने बना दिया थर्ड कॉलम। तो ये जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आया है, दिस विल बी कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेसिकली यू टेक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यू ऑब्टेन कोफैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो आप जो नया मैट्रिक्स बनाते हो, देन यू टेक द ट्रांसपोज एंड द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड विल बी कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ ए। इज इट ओके? नाउ लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ओवर हेयर। सबसे पहले हम लेते हैं, मान लो एक मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बेटा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। सो लेट मी टेक एग्जाम्पल ओवर हेयर। मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, एलिमेंट्स आर 2 4, then we have -5 and suppose we have -6. Is it all right? पहले ऑर्डर 2 का हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। अब आप नोटिस करो कि ये ऑर्डर 2 का है, तो एक तरह से इसमें एलिमेंट्स हैं बेटा A11, A12, A21 एंड A22। इज इट ओके? तो इसका एडजॉइंट कैसा होगा जब हम इन हर एलिमेंट्स का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। लेट अस ऑब्टेन C11 विच इज कोफैक्टर ऑफ A11, मतलब 2 का कोफैक्टर। यू नो दैट डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर इज व्हाट इज Cij? Cij you know that it is equal to -1 की पावर लेते हैं I plus j into corresponding minor Mij. What was Mij? It was the determinant obtained by deleting ith row and jth column. So C11 we are obtaining, मतलब इस एलिमेंट 2 का कोफैक्टर। इज इट ऑल राइट? तो -1 की पावर 1 + 1 2 आएगा, डिलीट फर्स्ट रो हेयर एंड फर्स्ट कॉलम, वी हैव -6, तो इट इज इक्वल टू -6। देन वी ऑब्टेन कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट विच इज A12 बेटा, ठीक है? A12 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो वी आर डिनोटिंग इट बाय C12. So -1 raised power 1 plus 2 will be 3. Now 4 is in first row and second column. Delete karo, we are left with -5. So this is equal to 5. Now we obtain cofactor of -5, मतलब A21 का cofactor. So we are going to denote it by C21. So -1 raised power I plus j, उसका मतलब कितना हुआ, 3. अब देखो इसका cofactor, delete first column and second row, so we are left with 4. So this is equal to -4. फिर इस आखिरी एलिमेंट -6 जो कि है A22, इसका निकालते हैं कोफैक्टर, so it will be denoted by C22. -1 raised power 2 plus 2 will be 4 and -6 is in second row and second column, delete that, we are left with 2, so that means it is equal to 2. नाउ लुक हियर, अभी हमने डेफिनेशन में क्या बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है जो हमारे पास बेटा ये एलिमेंट्स थे सारे A11, A12, A21, A22, इनके कोफैक्टर्स लेंगे C11, C12, C21, C22 और फिर इसका ट्रांसपोज। ये कोफैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन, उनकी वैल्यूज पुट कर दो। C11 is -6, then we have 5, then -4 and 2, and let us take its transpose. So that means we are getting adjoint of A to be this matrix, which is what? First row को बनाओ first column, तो it will be -6 5. Second row will become second column, तो ये बन गया हमारा adjoint of A. So this new matrix obtained is called adjoint of A. Is it okay? So what we have done? Obtain cofactor of each and every element. तो उसका जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज ले लो, मैट्रिक्स obtained will be adjoint of A. अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो, लुक हियर, लेट अस लुक एट A एंड adjoint of A. देखो ये हमारा A था गिवन मैट्रिक्स एज यू कैन सी, ऑलराइट, और हमने जो निकाला है adjoint of A, it is given by this. Now let me tell you a shortcut to obtain
एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। आप एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा, यहां पे जैसे हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स थे 2 और -6 ए में, यहां पे हो गए -6 और 2, मतलब वी हैव इंटरचेंज्ड देम, इजंट इट? तो डायगनल एलिमेंट्स हो जाते हैं इंटरचेंज। नाउ लुक एट नॉन डायगनल एलिमेंट्स। आप ऑब्जर्व करो, यहां पे जैसे 4 था तो उसका नेगेटिव आ गया -4। सिमिलरली नॉन डायगनल एलिमेंट था -5 तो उसका नेगेटिव आ गया 5। तो दिस गिव्स अस अ शॉर्टकट टू ऑब्टेन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो लिखते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन यही हो कि कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट बताना है, अदरवाइज कभी यूज करना है किसी क्वेश्चन में ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट, then you can write it directly. So let's see the shortcut now. Is it all right? So shortcut for adjoint of A, अगर हमारे पास A है order 2 cross 2 का बेटा, so shortcut is this, that if you have a matrix A whose elements are A, B, C, D, then what will be adjoint of A? Let us write beta directly. So adjoint of A will be, we interchange elements on main diagonal. Main diagonal पे हमारे पास यहाँ पे हैं A और D. Now they will become D and A. And what about non-diagonal elements B and C? उनका वहीं पे रखे रखे आपने करना है sign change. Is it okay? So this will be adjoint of A. So there are two things. Number one, interchange elements on main diagonal. तो पहला स्टेप हमने ये करना है, interchange elements on diagonal. Is it all right? Diagonal या main diagonal एक ही बात है। और second point ये है, change sign only of diagonal elements. Is it all right? Off diagonal जो elements हैं बेटा, उनका आपने सिर्फ sign change करना है, तो we can directly write the adjoint. Is it okay? तो ये तो हमने एडजॉइंट देखा किसका, अगर हमारे पास मैट्रिक्स था ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। नाउ लेट अस ऑब्टेन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। इन मेनी क्वेश्चंस जब आप आगे करोगे बेटा, बोर्ड में क्वेश्चन आता है यूजुअली 6 मार्क्स का, of solving a system of linear equations, जिसमें आपको एडजॉइंट निकालना पड़ता है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। तो ध्यान से देखना और प्रैक्टिस हो जाएगी तो you will be able to obtain it real quick. All right. So let us now take a matrix A of order 3 cross 3 and we are going to obtain its adjoint. तो लिखते हैं, देखो, let me take a matrix A of order 3 cross 3. सपोज बेटा मेरे पास फर्स्ट रो है 1 -1 2, सेकेंड रो इज गिवन बाय 2 3 5 एंड थर्ड रो इज -2 0 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स को देखो कंपेयर करना है इससे, A11, A12, A13, it is a 3 cross 3 matrix, तो उसके elements in general we write like this. Then second row elements A21, A22, A23. Then third row elements would be A31, A32 and A33. Is it all right? Let us obtain first of all cofactor of A11, मतलब 1 का cofactor. तो पहले हर एलिमेंट का हमने निकालना है कोफैक्टर। तो C11 will be -1 raised par 2। अब 1 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, डिलीट करो और इस माइनर की वैल्यू निकालो 3 - 0। Is it all right? So that means value will be 3. Then we obtain cofactor of this element -1, मतलब A12. So cofactor will be denoted by C12. -1 की पावर बेटा I plus j होती है, जो कि कितनी हो गई 3। Then delete first row and second column, माइनर होगा 2 5 -2 1। इसकी वैल्यू निकालो 2 plus 10, that means it is equal to -12 बेटा। फिर हम निकालते हैं तीसरे एलिमेंट 2 मतलब A13 का कोफैक्टर। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन C13। इट विल बी -1 raised par 4 I plus j, ठीक है, और 3 है 2 है आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, डिलीट करो इस माइनर की वैल्यू 0 + 6, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 6।
अगला एलिमेंट लेते हैं ये वाला 2 विच इज A21, तो कोफैक्टर इसका होगा बेटा कितना, C21। -1 की पावर 2 + 1 इज 3। अब आप नोटिस करो, दिस एलिमेंट इज इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसको डिलीट कर दो। कॉरस्पॉन्डिंग माइनर बचता है -1 2 0 1, वैल्यू है -1 -0। इज इट ऑल राइट? तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 1। Let us obtain now cofactor of this middle element 3, that is A22. तो C22 will be equal to -1 raised power 2 + 2 4. Delete second row and second column, corresponding minor की value 1 + 4, that is equal to 5. Then we obtain cofactor of 5, जो कि कौन सा एलिमेंट है, A23। तो इसका कोफैक्टर डिनोट करेंगे C23 से। -1 की पावर 2 + 3 विल बी 5। अब देखो 5 इज इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, डिलीट करो, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर विल बी 0 और यहां पे -2, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 2। नाउ लेट अस ऑब्टेन कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट -2 विच इज A31। So we are going to obtain C31, -1 raised power 3 + 1 is 4. Now this element is in first column and third row, delete that, so we have -1 -6. Is it okay? So this is, we are deleting this, sorry, -5 -6. Is it okay? तो यहाँ पे आएगा हमारा -5 और -6, which is equal to -11. Now we obtain cofactor of this element 0, जो कि कौन सा एलिमेंट है, A32. So its cofactor will be denoted by C32, -1 raised power 3 + 2 5. Now 0 देखो यहाँ पे है, delete third row and second column, corresponding minor 5 -4. So we have 5 -4 which is equal to -1. आखिरी एलिमेंट का कोफैक्टर हम लेते हैं जो कि है 1, that is A33. तो कोफैक्टर will be denoted by C33, -1 raised power 3 + 3 6. Now this one is, as you can see, is in third row and third column, delete that, corresponding minor is 3 + 2, that is 5. All right, so it is 3 + 2 which is equal to 5. Now we have, you can see, obtained all the cofactors. क्या cofactors आ रहे हैं, 3 -12 6, then 1 5 2, then -11 -1 and 5. तो अब देखो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हम लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ A हमारा होता है, कोफैक्टर्स लेंगे बेटा C11 C12 C13, C21 C22 C23, then C31 C32 C33, and don't forget to take the transpose. Let us write the elements. All right, C11 is 3, then -12, then we have C13 is 6, then C21 is 1 5, then we have beta 2, then we have -11 -1 and 5, और इसका लेना है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का देखो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ध्यान से देखना, ऑर्डर 3 × 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ट्रांसपोज ले लो, फर्स्ट रो को बनाते हैं फर्स्ट कॉलम, तो इट इज 3 -12 6, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, दैट इज 1 5 2. Is it okay? Third row will become third column, that is -11 -1 and 5. तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपने देखा थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा इसको निकालने में, पर इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बोर्ड्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो करना यही है कि कोफैक्टर जो हम निकालते हैं, जिसकी डेफिनेशन ये थी हमारी कि Cij इज -1 raised power I + j इंटू कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, उससे हर एलिमेंट का हमने निकाला कोफैक्टर, then form a matrix of cofactors and take the transpose. So the resulting matrix will be adjoint of A. All right. अब देखो अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा and you have to obtain adjoint of a matrix of order 3, तो आपने ऐसे ही निकालना है।
अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर किसी क्वेश्चन में आपको एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत है, ठीक है, क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, यू हैव टू यूज एडजॉइंट ऑफ ए, देन आई विल टेल यू अ शॉर्टकट. इज इट ऑल राइट? तो सीखते हैं शॉर्टकट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. सो लेट अस लर्न द ट्रिक. तो शॉर्टकट फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, हमने 2x2 का सीख लिया बेटा. अब हम सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट के लिए शॉर्टकट. मैं सेम मैट्रिक्स लेती हूं जो मैंने ऊपर लिया था, सो दैट वी कैन कंपेयर दैट द आंसर इज सेम. इज इट ऑल राइट? नाउ द मैट्रिक्स विच आई हैव टेकन वाज 1 -1 2 was the first row, second row थी बेटा 2 3 5 and third row was -2 0 1. Isn't it? तो देखो यही मैट्रिक्स हमने लिया था. सेम मैट्रिक्स आई एम टेकिंग 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1. So let's see now how to obtain adjoint of this matrix by shortcut. अब देखो पहला स्टेप ये होगा, जो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं विल राइट देम एज इट इज. लुक हियर, we will write here 1 -1 2 2 3 5 then -2 0 1. all right, now observe, ये हमारा जैसे कॉलम 1 है बेटा C1 and this is column 2, right? इसको हम करेंगे रिपीट यहाँ पे. तो I will write column 1 and column 2 again. So elements are in column 1 1 2 -2 and elements in column 2 are -1 3 और 0. अब ये जो हमारे पास आया है ये 5 एलिमेंट्स की जो रो है, लेट अस कॉल इट एज R1, और ये 5 एलिमेंट्स की रो लेट मी कॉल इट एज R2. अब इनको रिपीट कर दो. वी विल राइट R1 R2 अगेन. सो वी हैव द एलिमेंट्स 1 -1 2 1 -1 देन 2 3 5 2 3. इज इट ऑल राइट? क्या किया देखो हमने, ये हमारे पास बेटा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था यहाँ पे, दिस मच वॉज ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास था. उसमें हमने क्या किया, पहले कॉलम 1 कॉलम 2 रिपीट किया, फिर ये जो 5 एलिमेंट्स की रो 1 रो 2 आई है उसको हमने किया है रिपीट. इज इट ओके? आई होप दिस इज क्लियर. अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा, डिलीट कर दो यहाँ पे रो 1 एंड कॉलम 1. सो वी डिलीट रो 1 एंड कॉलम 1. Now we are going to write adjoint of A directly. Yes, बिल्कुल directly without obtaining the cofactors. देखो डायरेक्टली हम इसके एलिमेंट्स लिखने वाले हैं. अब क्या करना है, ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जैसे ये आपके पास एलिमेंट्स बचे हैं, इनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करो. 3 - 0 विल बी 3. वी राइट 3 ओवर हेयर. आगे रो वाइज चलो, -10 -2 इज -12. अब देखो जाएंगे रो वाइज बट लिखेंगे कॉलम वाइज. वाई? क्योंकि एंड में ट्रांसपोज ले रहे थे, तो डायरेक्टली हम एलिमेंट्स को देख रो वाइज रहे हैं, विल राइट देम कॉलम वाइज ताकि ट्रांसपोज न लेना पड़े. नेक्स्ट देखो 0 + 6 दैट इज इक्वल टू 6. अगेन वी सॉ रो वाइज बट वी हैव रिटन कॉलम वाइज. अब नेक्स्ट ये देखो, दिस इज 0 + 1 दैट इज 1 विच वी विल राइट हेयर. Next is 1 + 4 that is 5. Again we have taken the elements row wise but I am writing column wise. Next row 2 - 0 will be 2. Is it okay? Next लेते हैं, देखो थर्ड रो पे आओ. This is -5 -6 -11. अब रो वाइज चलो, this is 4 - 5 that is -1. Again हमने बेटा देखा रो वाइज but we are writing column wise. Then we have 3 + 2 5 which will be written here. तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए. चेक कर लो, पहले जो हमने कोफैक्टर्स निकाल के देखा था वही है कि नहीं. देखो फर्स्ट रो was 3 1 -11. So you can see here also we have 3 1 -11. सेकेंड रो है -12 5 -1. तो यहाँ भी देखो -12 5 -1. थर्ड रो 6 2 5. So again we have third row as 6 2 5. Is it okay? So this is the shortcut to obtain adjoint of a matrix which is of order 3x3. So I hope अब आपको adjoint निकालना पता चल गया. Is it all right? Now let's move on to the properties of adjoint बेटा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं properties of adjoint of a matrix A. Look at the first property कि अगर A is a square non-singular matrix. अभी आज हमने non-singular matrix किया है, क्या होता है,
A square matrix whose determinant is non-zero. So if you have a square non-singular matrix of order n, A into adjoint of A ले या adjoint of A into A ले, it will always be equal to determinant of A multiplied by identity matrix. I hope you remember कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन जनरल इज नॉट कॉम्यूटेटिव. तो देखो इन जनरल a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता, पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इज सेम ऑलवेज, और दोनों इसके इक्वल होते हैं. वेरीफाई करते हैं देखो इस प्रॉपर्टी को. सो लेट अस टेक अ मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल आई टेक अ मैट्रिक्स of order 2 cross 2. Suppose the elements are 1, 2, 3 and -5. Is it all right? अब देखो हमने ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट किया है, तो यूज कर लेते हैं और डायरेक्टली निकालते हैं सो दैट वी कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी. इफ ए इज दिस, तो एडजॉइंट ऑफ ए लेट अस राइट. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? कि जो डायगोनल एलिमेंट्स थे बेटा इनको करना था आपस में इंटरचेंज. तो इंटरचेंज कर दो. वी हैव -5 1, और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अपनी जगह पे रखे सिर्फ उनका साइन अपोजिट करना है. तो इनका साइन अपोजिट करेंगे. वी गेट -2 -3. नाउ लेट अस ऑब्टेन द प्रोडक्ट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. सो आई हैव 1 2 3 -5. दिस इज मैट्रिक्स A. मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ A से, विच इज -5 -2 -3 एंड 1. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई. ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस हैं बेटा, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है. पहली एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करने हैं. तो वी हैव -5 -6. देन दिस एंट्री इज इन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो लो सेकेंड कॉलम -2 +2. सो वी हैव दिस. इज इट ओके? आप देखो यहाँ पे ये एंट्री है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज -15 +15. लेट अस राइट ओवर हेयर. देन लास्ट एंट्री इज इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज -6 -5. So what are we getting? A into adjoint of A is coming out to be, look here, we have -11 0 0 -11. Isn't it? We are getting this. अब आपको पता है मैट्रिक्स में बेटा पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन आता है. डिटर्मिनेंट में जब हम कॉमन लेते हैं वो रो या कॉलम वाइज होता है. मैट्रिक्स में हर एलिमेंट में से कॉमन लेना होता है. एज यू कैन सी बेटा -11 पूरे मैट्रिक्स में कॉमन है, तो ये बचा 1 0 0 1. इज इट ऑल राइट? अब आप नोटिस करो कि अगर हमने ये मैट्रिक्स ए लिया है तो इसका एक बारी जरा डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. लेट अस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. It will be this into this minus this into this, -5 -6 which is -11. तो अब आप नोटिस करो यहाँ पे कि ये -11 आ गया. इसका मतलब हमारे पास ये जो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A था किसके इक्वल आ गया? लुक हियर. सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू -11 is determinant of A, and this is nothing but identity matrix. Is it okay? So that is what we were saying. A into adjoint of A is determinant of A into identity matrix. अब जैसे मैंने A पहले लिया है adjoint of A बाद में, आप adjoint of A पहले लेके A बाद में लेके मल्टीप्लाई करोगे, again you will get the same result. So that is the first property of adjoint of a matrix. See, these properties are very very important because बोर्ड में तो यूज होती ही है बेटा आपकी, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं. All right, so memorize and understand each and every property. All right, let us now move on to the next one. Next property देखो हमारी ये है, if A is n-row singular matrix. अब singular matrix कौन सा होता है? जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है. तो उस केस में adjoint of A into A will be equal to A into adjoint of A, और ये null matrix बन जाएगा. Why? Because for singular matrix determinant of A 0 है. अभी देखो हमने एक प्रॉपर्टी करी है. What have we done in the previous step? That A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A, और हमने कहा ये होता है determinant of A times identity matrix, जिसको हमने वेरीफाई भी किया. अब आप नोटिस करो, अगर हमारे पास A जो है बेटा आपका है सिंगुलर मैट्रिक्स. Is it okay?
If A is singular matrix, this implies determinant of A will be 0. तो यहां पे 0 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो याद है ना स्केलर, अगर कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो ईच एंड एवरी एंट्री गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर. तो अगर आप 0 से i को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i विल बिकम null matrix because every entry will get multiplied by 0. So that means if a is singular, then a into adjoint of a will be equal to adjoint of a into a and they will become null matrix. तो दोनों का प्रोडक्ट ही हमारे पास क्या आ जाएगा, null matrix. अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं. लुक एट द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर a है n रोड स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ऑफ a होगा हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ a की, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट. अब यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ a की बात नहीं कर रहे बेटा, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट लिया हुआ है. इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1. ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a है नॉन जीरो. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर लेते हैं, मान लो अगर आपके पास A है मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, तो n रोज और n कॉलम्स का मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स हो गए. तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसमें अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A निकालना है तो आपको एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और उसकी पावर कर दो, ऑर्डर 3 है तो 3 - 1 दैट इज 2. तो यू कैन डायरेक्टली ऑब्टेन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. देखो इसको मैं वेरीफाई करके दिखाती हूँ. लेट मी टेक द सेम मैट्रिक्स हेयर जिसका अभी अभी बेटा हमने ऊपर एडजॉइंट निकाला था. इज इट ऑल राइट? ऑर्डर 3 का लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. हमने मैट्रिक्स लिया था 1 - 1 2 2 3 5 ओके एंड देन -2 0 1. इज इट ओके? ये अगर आप इसके डिटर्मिनेंट की बेटा वैल्यू निकालोगे, if you obtain the value of this determinant, this will come out to be 27. Is it okay? क्या वैल्यू आएगी बेटा? 27. अब देखो इसका हमने एडजॉइंट निकाला था तो वो मैं डायरेक्टली लिखती हूं. वी हैड obtained adjoint of A. क्या मैट्रिक्स आया था ये देखो, दो मेथड से निकाला था ना, एक शॉर्टकट से एक डायरेक्टली. लुक हियर, यही वाला मैंने मैट्रिक्स लिया है पीछे जहां पे हमने बेटा ये देखो ये वाला कि अगर मैट्रिक्स A ये था 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1 तो एडजॉइंट ये था. तो लेट मी राइट इट नाउ हियर. तो लेट अस राइट. इज इट ओके? सो अब देखो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एडजॉइंट ऑफ A लिखते हैं जो कि हमारा था फर्स्ट रो में बेटा एलिमेंट्स थे 3 1 -11, सेकेंड रो वॉज -12. जस्ट अ मोमेंट. So second row was -12 5 -1 और थर्ड रो थी बेटा 6 2 and 5. Is it okay? अगर आप इस एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता ही है, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो. सो इफ यू ऑब्टेन हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इज इट ऑल राइट? दिस विल कम आउट टू बी 27 × 27. ये आएगा बेटा. अगर आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे, रो 1 से एक्सपैंड कर सकते हो प्लस माइनस प्लस लेके, और ये बन गया 27 का स्क्वायर. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपने इसका निकालना है तो अगेन प्लस माइनस प्लस लेके यू कैन एक्सपैंड बाय रो 1 एंड फाइंड, यू विल गेट इट टू बी 27. तो यू कैन सी इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर. तो यही हम प्रॉपर्टी कह रहे थे बेटा कि अगर A मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर. तो अगर हमें कभी निकालना पड़े डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A का तो डू नॉट फाइंड एडजॉइंट ऑफ A. आप सिर्फ क्या करो, गिवन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो और पावर कर दो n-1. अगर ऑर्डर n है तो पावर n-1. जैसे अगर ऑर्डर आपका क्या है 3 है तो पावर कितनी हो गई? 2 हो गई. अगर आपके पास पहले ही मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का होगा तो 2 - 1 1, तो एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम आएंगे. देखो इसका भी एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो. लुक हियर, लेट मी टेक ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स. सपोज हमने ये देखो ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं. सपोज आई हैव 2 3 -1 और यहां पे ले लो -2. ये तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो क्या आ रही है.
इट इज -4 + 3 दैट इज इक्वल टू -1। ये आ रही है ना। इसका एडजॉइंट निकालना हमने सीखा है ना बेटा, ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का। क्या करते हैं देखो, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको करते हैं आपस में इंटरचेंज। तो अगर आपने इनको इंटरचेंज किया, सो आई एम गेटिंग -2 and 2, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, वहीं पे रखे, तो वी हैव -3 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। लेट अस ऑब्टेन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो दिस इज -4 माइनस माइनस, और यहाँ पे ये हो गया -4 बेटा, और ये माइनस ऑफ कितना 3। इज इट ओके? ये सॉरी, यहाँ पे ये जो है आपका इसका साइन चेंज किया तो 1 आएगा बेटा, है ना। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर रहे हो, 1 आएगा, तो दिस विल बिकम प्लस, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -1। कैन यू सी दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी -1 है और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी -1 है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर मैट्रिक्स ए ऑर्डर n क्रॉस n का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है बेटा, तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे n को 2 पुट करेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी सिंपली इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एज वी हैव सीन ऑल्सो, जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है वही उसके एडजॉइंट ऑफ ए का भी डिटर्मिनेंट है, राइट। और ऑर्डर 3 में भी आपने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। So please memorize this property. It's one of the most important properties of adjoint of A. Is it all right? So I hope it is clear to you and you won't forget it. Let's move on to the next property now. This is quite simple कि इसमें ना लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई होता है कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट लेते हो तो वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी नहीं होगा बेटा, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो वी कॉल इट एज लॉ ऑफ रिवर्सल। इज इट ऑल राइट? तो इसको क्या बोलेंगे हम? लॉ ऑफ रिवर्सल। 3 जगह पे हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में लॉ ऑफ रिवर्सल यूज होता है। एक आपने किया है ट्रांसपोज में, आपको याद होगा ये प्रॉपर्टी थी कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बेटा। ट्रांसपोज में व्हाट प्रॉपर्टी वी हैड डन, दैट ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसमें भी आपका लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई होता है, A और B का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, मतलब B पहले आता है A बाद में। तो एडजॉइंट में भी हम एंड में आपको याद होगा ट्रांसपोज लेते हैं, तो एडजॉइंट लेने में भी बेटा एडजॉइंट ऑफ A इंटू B will be equal to adjoint of B into adjoint of A. That means order will get reversed, right? Look at the next property now. एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ बेटा, कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है स्क्वायर, उसका आप पहले एडजॉइंट लेके फिर ट्रांसपोज लेते हो, तो ट्रांसपोज को टी से भी डिनोट करते हैं। सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स ए, वी टेक एडजॉइंट ऑफ ए और फिर हम उसका ट्रांसपोज लें, या फिर आप पहले ही जो ए मैट्रिक्स है उसका बेटा ट्रांसपोज ले लो। देखो ऊपर हमने क्या किया है, एक तरह से आप ये देखो, ए मैट्रिक्स का हमने पहले एडजॉइंट लिया और फिर लिया है उसका ट्रांसपोज। इज इट ऑल राइट? या फिर हम ए से पहले ए ट्रांसपोज पे चले जाएं और फिर उसका एडजॉइंट ले लें, तो आपको सेम ही मैट्रिक्स मिलेगा। इज इट ऑल राइट? ये भी रिजल्ट हमारा यूज होता है व्हेन वी सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ऑल राइट, तो उसको हम बाद में करेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग यू मे जस्ट मेमोराइज दिस प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी देखो, हमारे पास ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज पर n-2 टाइम्स ए। अब जैसे अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स बेटा ए होता है, इफ यू हैव एनी मैट्रिक्स ए, उसका एडजॉइंट लेके जो मैट्रिक्स आएगा उसका फिर से एडजॉइंट ले रहे हैं। जैसे आपने एक मैट्रिक्स ए लिया, फिर आप उसका एडजॉइंट निकाल लो, ठीक है, और फिर जो नया मैट्रिक्स आया है बेटा फिर से उसका लेंगे एडजॉइंट, तो ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बना।
तो इफ वी वांट टू फाइंड दिस मैट्रिक्स, तो हमें इसका पहले कोफैक्टर्स लेके एडजॉइंट निकालें, फिर इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स लेके उसका एडजॉइंट निकालें, तो वी डोंट हैव टू डू दिस लेंथी प्रोसीजर। वी हैव अ डायरेक्ट रिजल्ट कि आपका जो मैट्रिक्स ए है उसको सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 से कर दो मल्टीप्लाई। इज इट ऑल राइट? जैसे अगर एक सिंपली हम ऑर्डर 2 से वेरीफाई करना चाहें, तो मान लो अगर आपके पास मैट्रिक्स है 2, 3, suppose -1 and 5. Suppose we have this. Is it all right? तो आपको पता है डायरेक्टली इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। रिमेंबर, वी इंटरचेंज एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल पे 2, 5 है, इनको इंटरचेंज कर दो, वी गेट 5, 2। और ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ साइन चेंज करना है, तो वी गेट -3 and 1। अब इसका हम एडजॉइंट निकालते हैं। Now let us obtain adjoint of this new matrix. All right. अब इसमें भी आप ये करोगे, क्योंकि ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है तो शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा। आप नोटिस करो मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दो, वी गेट 2, 5। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका वहीं पे रखे रखे साइन चेंज करो। तो आप नोटिस कर रहे हो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। तो वी आर गेटिंग एडजॉइंट ऑफ ए टू बी इक्वल टू ए। अब ये मत समझना कि हर ऑर्डर के लिए ये इक्वल ही आएंगे, इसमें इक्वल तब आए हैं जब ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स होता बेटा ए जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तब हमारे पास ये रिजल्ट आएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी, ये देखो n-2। अब n3 है तो 3 - 2 1, तो मतलब इट विल कम आउट टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स मैट्रिक्स ए। इज इट ऑल राइट? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स ए। इसी तरह से मान लो अगर आपके पास मैट्रिक्स बेटा 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, तो भी ऐसा नहीं है कि ये दोनों इक्वल आएंगे। तब क्या रिजल्ट होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। अब देखो यहाँ पे आपके पास n3 था तो 3 - 2 पावर 1 आ गई। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 4, जैसे ऊपर 3 थी, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 2 आएगी, फिर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल तभी होगा अगर आपका ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इज इट ओके? तो इन जनरल हमारे पास ये रिजल्ट है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज पर n-2 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडजॉइंट की। अब देखो पिछले प्रॉपर्टी में हम एडजॉइंट ऑफ ए के मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, यहां उसी के डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। व्हाट आर वी सेइंग? जैसे अगर ए मैट्रिक्स है ऑर्डर n क्रॉस n का और हमें चाहिए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का, तो वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए बेटा ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का होता, देन ये प्रॉपर्टी क्या देती हमें कि अगर आपको क्वेश्चन में निकालना पड़े एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, पता है कई बारी बोर्ड एग्जाम्स में जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के, उनमें इसके ऊपर क्वेश्चन कई बारी आया है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया और उसके एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ ली, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए और उसका एडजॉइंट फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे कि अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास 3 है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, तो वी विल गेट दिस रिजल्ट। इज इट ओके? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट सिंपली हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। अगर बाय चांस आपके पास ए होता बेटा ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, तो इसमें हमारे पास n की वैल्यू देखो 2 है, तब रिजल्ट क्या बन जाता कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर। अब देखो 2 - 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही आएगा, तो उस केस में ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगेन हर बारी आप सोचो कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, नहीं, ये सिर्फ तब होगा जब आपके पास ऑर्डर 2 है।
इज इट ऑल राइट? तो इन जनरल हमारे पास रिजल्ट ये होता है। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। एक हमने किया था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, राइट? एक रिजल्ट देखो ये किया था हमने कि अगर ए ऑर्डर आपका n क्रॉस n का है तो वी हैड डन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो अगर आपने एक बारी और एडजॉइंट ले लिया तो वो बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। एक चीज यहां पे बताना चाहूंगी कि अगर आप 3 बारी एडजॉइंट लेते हो बेटा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इज इट ऑल राइट? अगर आपको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का क्यूब। तो अगर जितनी बारी एडजॉइंट आएगा n-1 की पावर उतनी ही आएगी। अगर देखो एक बारी एडजॉइंट था तो n-1 आ रहा है, अगर 2 बारी एडजॉइंट है तो n-1 का स्क्वायर है, 3 बार एडजॉइंट है तो n-1 का क्यूब है, एंड सो ऑन दिस कैन बी कंटिन्यूड। इज इट ओके? So I hope you've got the hang of it. All right. Let's see the next property now. कि adjoint of a diagonal matrix is a diagonal matrix. इसको देखो एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास मैट्रिक्स A है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का बेटा हमने लेना है। जस्ट अ मोमेंट। तो लेट मी टेक अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. Suppose I have 2 0 0 0 3 4 0 3 0 and we have 0 0 4. डायगनल मैट्रिक्स याद है ना क्या था? ऑफ डायगनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, मेन डायगनल पे जीरो या नॉन जीरो कुछ भी ले सकते हैं। तो दिस इज अ डायगनल मैट्रिक्स। इज इट ऑल राइट? ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। तो अगर आप इसका एडजॉइंट लोगे ना बेटा, वो भी डायगनल मैट्रिक्स आएगा। तो इसका एडजॉइंट निकालते हैं, शॉर्टकट से निकालें जो आपको बताया था। देखो एक बारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्या करना था, पहले ये वाले एलिमेंट्स एज इट इज लिखने थे 2 0 0 0 3 0 0 0 4। देन आई टोल्ड यू कि कॉलम 1 कॉलम 2 रिपीट करो यहां पे। तो आई हैव 2 0 0 देन 0 3 0। फिर ये बन गई हमारी पूरी रो 1 एंड दिस इज रो 2। अब ये 5 एलिमेंट्स की रो 1 रो 2 रिपीट कर दो। तो वी हैव 2 0 0 2 0 देन 0 3 0 0 3। इज इट ऑल राइट? देन आई टोल्ड यू डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको कर दो डिलीट। नाउ वी कैन राइट एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए हम डायरेक्टली लिखते हैं बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस किसको इससे, तो ये आ गया 12। फिर रो वाइज देखो 0 माइनस 0 इज 0, देखना रो वाइज है, लिखना कॉलम वाइज है। अगेन 0 माइनस 0 इज 0। अगली पे आओ रो पे, 0 माइनस 0 इज 0। फिर ये देखो दिस इज 8 माइनस 0 इज 8। तो देखेंगे रो वाइज, लिखेंगे कॉलम वाइज। देन 0 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 0। देन वी हैव लुक हियर, दिस इज 0 माइनस 0 इज 0। Again 0 minus 0 is 0. So again we are looking row wise but we are writing column wise. ये आ गया 6 minus 0 that is 6. ये adjoint of A आ गया ना। क्या आप देख सकते हो बेटा ये भी क्या है? This is also a diagonal matrix, isn't it? Main diagonal पे आपके पास numbers हैं 12 8 6, off diagonal elements are all 0. तो अगर आपका मैट्रिक्स A diagonal matrix है बेटा, अगर हमारे पास A डायगनल मैट्रिक्स है तो वी हैव सीन दैट एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या आएगा, डायगनल मैट्रिक्स ही आएगा। तो यही बात हमने इस प्रॉपर्टी में बोली है बेटा, राइट? सो व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? इफ K इज एनी स्केलर देन एडजॉइंट ऑफ K टाइम्स A इज K रेज पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ A। इट मीन्स देखो अगर हमारे पास A मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस n का है and K is any scalar, is it all right? Then अगर आपको चाहिए adjoint of K times A, तो ऐसा नहीं है आप adjoint से K बाहर निकाल लोगे। It is not K times adjoint of A. It will be K raised power n-1 adjoint of A. अब देखो n-1 क्यों आता है? क्योंकि आपको याद होगा एडजॉइंट की डेफिनेशन थी, आप मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका कोफैक्टर्स ले रहे थे ना, फिर ट्रांसपोज ले रहे थे, तभी तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर की आपको याद होगा डेफिनेशन ये थी बेटा, Cij होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू कॉरस्पॉन्डिंग माइनर।
अब ये जो माइनर होता है ये कैसे निकालते हैं? इट इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। तो मतलब अगर मैट्रिक्स ए n ऑर्डर का है या n क्रॉस n का है तो माइनर का ऑर्डर कितना होता है बेटा? n-1, क्योंकि एक रो एक कॉलम डिलीट हो जाता है तो हर एक में से k कॉमन आएगा तो k कितनी बार बाहर आएगा? n-1 टाइम्स। इज इट ऑल राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑर्डर ऑफ a एज 3 क्रॉस 3 और k कोई स्केलर है तो प्रॉपर्टी ये बन जाएगी, देखो कि एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स a विल बी इक्वल टू k की पावर n-1। यहाँ पे n कितना है बेटा? 3 है तो वी विल गेट k स्क्वायर टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a आएगा। और अगर जैसे आपके पास a का मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है दैट मीन्स वैल्यू ऑफ n इज 2, फिर प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स a विल बी इक्वल टू k की पावर n-1 k, फिर आएगा ये। तो इसका मतलब k एज इट इज बेटा बाहर सिर्फ तब आएगा जब आपके पास मैट्रिक्स A का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो k स्क्वायर बाहर आएगा, ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है तो k 4 आएगा, सॉरी k क्यूब बाहर आएगा। इन जनरल अगर A का ऑर्डर n क्रॉस n है तो k रेज पर n-1 विल कम आउटसाइड। इज इट ऑल राइट? तो देखो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इज इट ऑल राइट? अब हम देखो आगे मूव करते हैं किस पे? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। तो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर याद है ना हमने किया है इस लेक्चर में, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है नॉन जीरो, देन इट इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ, इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कब इन्वर्टिबल कहलाता है? इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट AB into BA इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। कि अगर एक मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करता है कि उसको गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, और इसको हम डिनोट करते हैं A इनवर्स से, मतलब A इनवर्स को B लिखते हैं। तो एक तरह से ये हो गया। तो A इनवर्स B कब होगा बेटा? अगर AB इंटू BA कितना होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, B को A इनवर्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, बट हियर अगर इनवर्स आपको मिल रहा है तो A इनवर्स लें या A इनवर्स A लें, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आएगा एंड इट विल बी गिविंग अस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। जो A का ऑर्डर है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा सेम ऑर्डर का। इज इट ओके? अब देखो आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी करी है एडजॉइंट में कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? और इसको हमने वेरीफाई भी किया था। तो इनवर्स निकालेंगे कैसे? What we do is दोनों तरफ हमने इसको A इनवर्स से बेटा कर दिया मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन में we are multiplying both sides by A इनवर्स। अब हमने कहा देखो यहाँ पे कि A इनवर्स इंटू A, यहाँ पे अभी मैंने बताया कितना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो आपका A इनवर्स इंटू A आ रहा है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट ऑफ A एज इट इज, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यू नो दिस प्रॉपर्टी, इफ यू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो इन पर्टिकुलर अगर A इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू विल गेट A इनवर्स। तो यहाँ पे A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ जाएगा। इज इट ऑल राइट? और ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये in बेशक आप यहाँ पे हटा भी सकते हो, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली लिख दिया इट विल बी इक्वल टू दिस। इसको मैं फर्दर लिख देती हूँ। तो दिस कैन बी रिटन एज A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A से कर दो डिवाइड, और यहाँ लेफ्ट साइड पे भी देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग बेसिकली adjoint of A is equal to A inverse into determinant of A. Is it all right? अब हमने देखो ऊपर कहा है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है?
जब हमारा मैट्रिक्स बेटा क्या होता है, नॉन सिंगुलर। तो ये क्यों कहा? नॉन सिंगुलर का मतलब था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए नॉन जीरो। तो अब आप ऑब्जर्व करो, ए इनवर्स निकालना है तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हटाना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू डिवाइड बाय, यहां पे हम करेंगे डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आपको पता है मैथ्स में डिवीजन सिर्फ नॉन जीरो क्वांटिटी से होता है, तो इसीलिए जरूरी है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए तभी हटेगा जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा। तो डिवाइड कर लो, तो हमारे पास आ गया ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर। ऑलराइट, तो देखो हमने नोट में भी ये बोल रहे हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मीन्स टू फॉर इट्स इनवर्स टू एग्जिस्ट इज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी जीरो। और फॉर्मूला आपने याद रखना है इनवर्स निकालने के लिए कि इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू ऑब्टेन एडजॉइंट ऑफ ए, इज इट ऑल राइट? तो उसको निकाल के अगर उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इनवर्स मिल जाएगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एडजॉइंट के टाइम पे बेटा हमने ये मैट्रिक्स लिया था एक, जिसके एलिमेंट्स थे देखो 1 -1 2, देन वी हैव 2 3 5 और फिर था हमारे पास -2 0 1। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा अगर हम निकालें तो दैट वाज कमिंग आउट टू बी 27, और इसका हमने एडजॉइंट भी निकाला था दोनों मेथड से, तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। तो एडजॉइंट ऑफ ए वाज कमिंग आउट टू बी, फर्स्ट कॉलम वाज 3 -12 6, सेकेंड कॉलम वाज 1 5 2 and then -11 -1 and 5. Is it all right? तो देखो बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है तो A इनवर्स क्या आ गया? तो लेट मी राइट A इनवर्स नाउ। इट विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A multiplied by adjoint of A. So it is equal to 1 upon 27 times this matrix 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5. Is it all right? तो ये जो न्यू मैट्रिक्स आया है, आप चाहो तो हर एंट्री को 1/27 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी कॉल्ड एज A इनवर्स। और हमने कहा था ना कि A और A इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। देखो एक बारी फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं। लेट अस फाइंड A इंटू A इनवर्स। अब देखो जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो स्केलर है वो आप बाहर ले सकते हो 1/27। सो लेट अस राइट दिस नाउ। A matrix was 1 -1 2, second row was 2 3 5, third row was -2 0 1। तो 1/27 हमने बाहर ले लिया बेटा। अब ये मैट्रिक्स लिखते हैं क्योंकि A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 -11 -12 5 -1 then 6 2 5. Is it okay? Now let us observe. What do we get? 1 upon 27. अब जैसे आप देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लोगे तो 3 + 12 + 12. Is it all right? तो ये आ गया 27. All right? Similarly फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लो 1 -5 -4 + 4 will be 0. सिमिलरली बेटा बाकी के एलिमेंट्स आपके ये आ जाएंगे इफ यू मल्टीप्लाई। इज इट ऑल राइट? दीज विल बी द रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब 1/27 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल बी गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू 1 0 0 0 1 0। जस्ट अ मोमेंट। सो वी विल हैव 0 1 0 एंड देन 0 0 1। ठीक है, 1/27 से मल्टीप्लाई किया तो हर एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो गया एंड यू कैन सी दिस इज कमिंग आउट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने वेरीफाई भी कर लिया, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी ये है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, कि हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स होता है, मतलब एक ही इनवर्स होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था A, ये वाला बेटा, इसका सिर्फ ये इनवर्स आएगा, किसी भी मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते। इज इट ऑल राइट? तो दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। लुक एट सेकेंड प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें प्रोडक्ट में जैसे
ट्रांसपोज में था लॉ ऑफ रिवर्सल, एडजॉइंट में था लॉ ऑफ रिवर्सल, इनवर्स में भी लॉ ऑफ रिवर्सल होता है। क्योंकि इनवर्स निकालते कैसे हैं, देखो अभी अभी हमने डेफिनेशन करी है, वी सेड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्योंकि एडजॉइंट में लॉ ऑफ रिवर्सल था तो मैट्रिसेस में भी ए इंटू बी का इनवर्स लोगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। और देखो नोट में, अगर आपके पास ज्यादा मैट्रिसेस हैं, यहाँ पे दो का प्रोडक्ट नहीं है बेटा हमारे पास, ए बी सी वाई जेड इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है और उसका इनवर्स चाहिए, और इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जब वो मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो। तो देखो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, Z इनवर्स, Y इनवर्स, C इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स। तो कितने भी मैट्रिसेस ले लो, प्रोडक्ट का इनवर्स लोगे तो ऑर्डर रिवर्स करना है, एंड वी कॉल इट एज रिवर्सल लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर A इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो A डैश मतलब A ट्रांसपोज भी इन्वर्टेबल होगा। आप पहले ट्रांसपोज लेके फिर इनवर्स लो, या पहले इनवर्स लेके फिर ट्रांसपोज लो, एक ही बात है। जैसे ट्रांसपोज को देखो हम टी से भी डिनोट करते हैं, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज पहले ट्रांसपोज लेके फिर इनवर्स लें, या फिर हम पहले इनवर्स निकाल लें फिर ट्रांसपोज लें, बात एक ही है, सेम मैट्रिक्स मिलेगा। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेन और एडवांस दोनों में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इज इट ऑल राइट? तो रिमेंबर दिस। अगली प्रॉपर्टी देखो, अगर ए आपके पास कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और के इज एनी नेचुरल नंबर, इज इट ऑल राइट? तो ए रेस पर के का इनवर्स, मतलब जैसे ए स्क्वायर ले लो, ए क्यूब ले लो, फिर इनवर्स लें, या पहले इनवर्स लेके वो पावर लें, बात एक ही है। इज इट ऑल राइट? एंड इट कैन बी रिटन एज ए रेस पर माइनस के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास के की वैल्यू मान लो 3 है, तो हम ये बोल रहे हैं ए क्यूब का इनवर्स इज सेम एज ए इनवर्स का क्यूब, और आप इसको लिख सकते हैं ए रेस पावर -3। इज इट ओके? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ ए इज एनी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन इनवर्स का फिर से इनवर्स लेंगे तो यू विल गेट ए इटसेल्फ। इनवर्स ले लो फिर दोबारा से इनवर्स लो, यू विल गेट ए मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है? और देखो एक नोट देखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स वो मैट्रिक्स खुद ही होता है, क्योंकि आपको याद है हमने आज क्या डिफाइन किया कि अगर ए का इनवर्स बी है, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, देन वी हैड डन दैट ए इंटू बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो आपस में जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो आई ही आता है ना, तो आई इंटू आई इज आई। तो इसका मतलब आपके पास अगर A मैट्रिक्स आई है तो B भी क्या होगा, आई होगा, क्योंकि I को I से ही मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। दिस इंप्लाइज वी हैव इनवर्स ऑफ I इज इक्वल टू I इटसेल्फ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स वो मैट्रिक्स खुद ही होता है। ऑलराइट? अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, सपोज आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का, और वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो आप इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करता है। इज इट ऑल राइट? इफ यू हैव अ मैट्रिक्स ए, तो इन्वर्टिबल कहा है तो ऑब्वियसली वो नॉन सिंगुलर होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होगी बेटा नॉन जीरो। और आपको निकालने के लिए आ जाए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन ए इनवर्स। आप गिवन मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल डिफाइंड होगा क्योंकि ए नॉन जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्टिबल है तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो दैट मीन्स ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो फॉर दैट वी डू नॉट नीड टू ऑब्टेन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑलराइट, look at the next property, that inverse of a non-singular diagonal matrix is again a diagonal matrix। अब देखो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको एडजॉइंट में भी बताई कि अगर A आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो एडजॉइंट ऑफ A भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इज इट ओके? तो इनवर्स में होता क्या है, डेफिनेशन क्या है हमारी, देखो इनवर्स की, वी सेड कि A इनवर्स इज इक्वल टू सिंपली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A।
इज इट ऑल राइट? तो देखो अगर A हमारा डायगोनल था तो एडजॉइंट ऑफ A भी डायगोनल होता है, तो A इनवर्स भी डायगोनल होगा, क्योंकि उसकी हर एंट्री को हम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है देखो कि जैसे ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो A अगर हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो A इनवर्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं बेटा उनका ले लो रेसिप्रोकल। इज इट ऑल राइट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल रहे हैं कि अगर A मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का बेटा हमारे पास है, सपोज 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ऑब्वियसली देखो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, याद है डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 6 4s are 24 विच इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो डायरेक्टली A इनवर्स हम लिख सकते हैं, क्या जाएगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं बेटा उनका ले लेंगे रेसिप्रोकल। सो वी विल हैव 1/2 0 0 0 1/3 0 and 0 0 1 upon 4. So it will be a diagonal matrix A inverse and it can be obtained directly. Is it okay? So these were the properties of inverse of a matrix. All right? तो इसमें जैसे हमने देखा कि अगर A हमारा बेटा डायगोनल होता है तो एडजॉइंट ऑफ A और इनवर्स ऑफ A भी डायगोनल होता है। तो इस लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहली चीज हमने देखी, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, नॉन सिंगुलर अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो। ऑलराइट, देन वी लर्न हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्या करना है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर लो, उसका मैट्रिक्स बनाओ और ले लो ट्रांसपोज, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करो, न्यू मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ ए। And we also learned shortcut to find adjoint of a matrix of order 2 cross 2 and 3 cross 3. उसके बाद we saw properties of adjoint of A. Believe me, they are very important. You get direct questions on them. After that we defined inverse of a matrix. तो main condition है कि determinant होना चाहिए हमारा non zero, मतलब corresponding matrix should be non singular. तो inverse की definition हमने करी, it is 1 upon determinant of A multiplied by adjoint of A. And then we saw some properties of inverse of a matrix. All right? तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं. In the next lecture we will do some questions based on adjoint and inverse of a matrix beta. So revise this properly so that in the next lecture when we do questions you do not get any problem. All right? So keep revising beta. Hope you are enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye-bye.